we had done the concept of self-induction. What are the formula for self-induction? Phi is equal to Li. And second formula was E was minus L di by dt. Third, self-inductance for a solenoid was mu 0 n square area by L. L is the length. Similarly, we had done the concept of mutual induction. Phi was Mi. E was minus M di by dt. And mutual inductance between two coils was mu 0 n1 n2 area by L, where area this will be of the smaller coil. And lastly, we had done the concept of eddy currents last time. Eddy currents हमने किया. So this all was done last time. On the basis of this, I'll be doing numericals today. We had done till I think 59 तो हो चुका है. ये भी हो चुका है. NAB. We have done till yes, 50, 60. We have also done yes. Yeah, 75. 75 say we are doing numericals today, and then we will complete the chapter. Okay, क्या क्या है? A coil having number of turns 100. Current passing is 2 milliampere. 2 into 10 is to minus 3 ampere. Self-inductance is 10 millihenry. Find the magnetic flux linked with the coil. Achha, with each turn. देखो टोटल फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था phi is equal to Li, बट यहाँ पर सिंस नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं आपको ऐसे लिखना है n phi is equal to Li. Phi is equal to Li was for one turn. Phi is Li for one turn, flux linked with one turn. So n number of turns से क्या रहेगा? n phi is equal to Li. So this is flux linked per turn. And if you multiply by n number of turns, this whole thing becomes total flux. तो phi क्या हो जाएगा? Li by n 10 into 10 is to minus 3 by into I by n. Okay. So this will be 100 will become 2 into 10 is to minus 3 will become 10 is to minus 5 and minus 2. So 2 into 10 raised to minus 7 Weber is the unit of flux link per turn. This is per turn. एक turn के साथ में. Which formula will I have used? N phi is equal to Li. Yeah, N phi is equal to Li. N phi is equal to Li. Next one. Okay. Now, explain why inductance of two coils in parallel is less than inductance of either coil. Always remember one thing, that whenever inductors are in series, this basic concept it is, suppose there are two inductors L1 and L2 and they are in series. So net formula क्या हो जाएगा L series का? L1 plus L2. Inductors in parallel
ये क्या हो जाएगा L1 L2 and this will be L parallel क्या हो जाएगा, it will be like resistors only, L1 L2 upon L1 plus L2. But I know that this answer L parallel will always be less than L1 and L2 because in parallel the number becomes lesser than the individual. In parallel answer becomes lesser than individual. So यही प्रूव हो गया ना अभी, because L parallel का फॉर्मूला ये है और ये आंसर जो रहेगा वो L1 and L2 से कम रहेगा. Getting it what's happening? Like resistors in series and parallel, it is same as same relation as resistors. Question number 80. Same formula what we had done. The self inductance of a closely wound coil of 200 turns. The number of turns कितना है? L कितना है? 10 millihenry. Determine the value of magnetic flux through the coil when the current passing through the coil is 4 milliampere. क्या find करना है? Flux through the cross section of the coil. मतलब flux per turn निकालने का. Hello? You understanding what's happening? क्या निकालेंगे? Flux per turn. What formula will I use? N phi is equal to. We have done this before. So phi क्या हो जाएगा? Li by L कितना है? 10 मिली हेनरी माइनस 3. I कितना है? 4 मिली एम्पियर. और n number of turns is 200. So this will be minus 6 minus 5 minus 2 into 2. So 2 into 10 is to minus 7 वेबर. बराबर है क्या? अभी थोड़ी देर पहले किया था. Yes or no? This is flux per turn. Flux per turn. What formula to use? N phi is equal to Li floor total number of flux which is there. This is question number 80. Got it? Fine. Listen to me, pay attention. Derive the expression for, ध्यान देना इधर, बात सुनो सब लोग. Derive an expression for self-inductance of a toroid. The toroid मतलब क्या? Look over here carefully. See, toroid is a closed solenoid. Pay attention over here. Toroid ऐसे होता है. ये toroid होता है. ये solenoid था ऐसे. हमको पता है कि solenoid के अंदर magnetic field ऐसे होती है. What is the formula for magnetic field inside a solenoid? Mu 0 n by L into I. So we have done it in magnetism. वैसे ही हमने क्या कर दिया? This was a solenoid. इसको हम राउंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? And the magnetic field which is there inside will be confined to this place. ऐसे अंदर आ जाएगा. And they are telling you that the major radiuses are, and the cross sectional radius of this thing, मतलब इसका radius ये दिख रहा है, ये इसका radius, ये जो है ना, ये cross sectional area, इसका radius is छोटा r.
बराबर है, क्लियर है। तो ये पूरा रेडियस जो है, कैन यू टेल मी हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द टोरॉइड? 2 पाई pi विच r आर, विच आर capital. कैपिटल आर। एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है यहाँ से, बोलो सही है। हेलो, अरे भाई ये जो लूप है ना, ये दिख रहा है क्या है ये, hearing it or not? हेलो, आर यू देयर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जब भी आपको पूछेगा ना सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, इसके 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, पास करंट। करंट हमने इसमें पास किया, इसमें हमने करंट पास किया आए, ठीक है। इसके कारण क्या सेटअप होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल सेटअप। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड है ना, सोलोनॉइड और टोरॉइड? आपको फॉर्मूला मैंने आपको बताया है या उधर किया रहेगा आपने, ये म्यू जीरो एन बाय एल इंटू आई। बट व्हाट इज एल स्टैंड फॉर? यही फॉर्मूला ले लो। व्हाट इज एल फॉर अ टोरॉइड? व्हाट इज एल फॉर अ टोरॉइड? So 2 pi 2 पाई capital R. कैपिटल आर, बराबर है क्या? ये मिल गया। स्टेप नंबर 3, फ्लक्स इज इक्वल टू एन ए बी। सुना है आप लोगों ने? फ्लक्स इज एन ए बी, n is number of turns, a is area, b is magnetic induction। तो फ्लक्स इज एन ए। ए की जगह क्या लिखने का? एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है पाई छोटा आर स्क्वायर इंटू बी। बी की जगह क्या लिखना है? म्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई आर। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, बोलो? तो फ्लक्स कितना होता है? म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई छोटा आर स्क्वायर 2 पाई बड़ा आर इंटू आई। बट आप लोगों ने ये फॉर्मूला सुना है, फाई इज इक्वल टू एल आई? अरे भाई फाई इज इक्वल टू एल आई, देखो फाई इज इक्वल टू एल आई। तो एल क्या हो गया यहाँ से? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड कितना हो गया? म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये पाई पाई उड़ा दूं चलेगा? इट विल बी आर स्क्वायर बाय 2 आर। बोलो सही है? हेलो, यस और नो? दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ टोरॉइड। दिस इज हाउ यू डिराइव इट। पहले करंट पास करो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, फ्लक्स इज एन ए बी, एंड देन you'll be able to apply the formula. Getting it? Formula क्या है? म्यू जीरो एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 आर। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर अ टोरॉइड, क्या हो जाएगा? म्यू जीरो का वैल्यू मालूम है किसको? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। म्यू होता है एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1200 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 आर। बड़ा आर कितना है? 15 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻, उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट एज 2.4 इंटू 10⁻³ हेनरी। Got it? This is how you solve it. You will get the resultant answer in that manner. Clear? बोलो सही है क्या? Okay. Now we'll go to next question. ये क्लियर है ना भाई? डिराइव कैसे करना है? बुक के अंदर अलग तरीके से डिराइव किया है उसने। ये इजी मेथड है जनरली। इफ यू डोंट राइट यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन द एंड। आप बुक में से नहीं पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर
82. Consider a uniformly wound solenoid having n number of turns and length L. The core of the solenoid is in air. Find the inductance of the solenoid. Okay, what is inductance for a solenoid का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे से बताया था. देखो फिर से डेराइव कर लेता, मैंने वो जो तरीके से डेराइव किया था इस तरीके से डेराइव करते हैं. सोलोनॉइड ये होता है. सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? पास करंट. सेकेंड स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलोनॉइड कितना होता है? म्यू जीरो नंबर ऑफ टर्न्स बाय एल इनटू आई. पीछे 2 पाई आर लिख दिया था इसका. थर्ड स्टेप, फ्लक्स इज एन ए बी. ये एन ए बी, एन ए बी, बी की जगह म्यू जीरो एन आई बाय एल. दिस इज द लेंथ. हाँ बेटा, ये सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है, ये लेंथ है इसका. ये हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर एरिया बाय एल इंटू आई, दैट इज फाई. तो फाई इज इक्वल टू एल आई ना. तो एल कितना हो गया? म्यू जीरो एन स्क्वायर एरिया बाय एल. दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड. ये पीछे हमने डेराइव करके लिखा है लास्ट टाइम. म्यू नॉट का वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷. Number of turns on the question is given as 200. Cross sectional area is given as 5 centimeter square upon length. Length is given as 20 centimeter. So answer आएगा हेनरी में. Got it? This is how you derive it. उन्होंने अलग तरीके से derive किया है. ये एकदम easy method है. सबसे पहले pass current, magnetic field, flux is NAB. Getting it or not? हेलो, या तो आपको नहीं समझता है तो सीधा सीधा फॉर्मूला रट्टा मारो उसको. They will not cut any marks. They have not asked you to derive. आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखो जो मैंने 2-3 स्लाइड पहले दिया था. म्यू जीरो एन स्क्वायर एरिया स्मॉल बाय एल दिया था ना. Okay. 85th. The 85th question is not there. कैंसिल कर दो उसको, क्वेश्चन में नहीं है. 85th question is coaxial cable. नॉर्मली कोएक्सियल केबल है ही नहीं क्वेश्चन में. अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 94. And then we'll do transformers after that and finished. The value of mutual inductance of the coil is 10 millihenry. M कितना दिया है? 10 millihenry. If the current in one coil changes from 5 ampere to 1 ampere, so how much is DI beta? 4 ampere. In a time of how much? Calculate the value of EMF induced. Also calculate the value of induced charge when the resistance of the coil is 5 ohms. ये standard results है. For mutual inductance आपको पता होना चाहिए E is M di by dt. M कितना है? 10 into 10⁻³ है. di is given as 4 and dt is given as 0.2. Come in volt. Okay, so 0.2 volt. This is EMF induced. And the charge induced is d phi by r. या तो चार्ज इंड्यूस्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. डी फाई बाई आर एक्चुअल फॉर्मूला है. डी फाई बाई आर एक्चुअल फॉर्मूला है, पर ऐसे चलेगा नहीं. कैन आई से E इज इक्वल टू आई इंटू आर. आई इंटू आर, आई इंटू आर. E कितना है? 0.2 है जो हमने ढूंढा. आई आर कितना है? 5 है. तो आई वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0.2 बाई 5 एम्पियर. अच्छा, आई को लिख सकते हैं Q बाई टी. इज 0.2 बाई 5. Q by T. T कितना दिया है? 0.2 दिया है ना. Q will become 0.04 by
that much coulombs is the answer. Getting it? 8 millicoulombs you will get. Okay, so this is how you solve it. A very simple question. E is mdi by dt, basic formula. And E is IR and I is Q by T. तो आता ही रहेगा सब, ठीक है. What are they telling you? Question number 96. देखो इधर. A long solenoid of length L, cross section area A, having n number of turns, having small coil of n number of turns N2, wound about its center. Determine the mutual inductance. Okay. थोड़ा सी मैं आपको बता दूंगा. Generally it is देखते हैं हम लोग. देखो क्या हो रहा था. इधर ध्यान दो. सपोज एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल. इसके ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल वाउंड है ऐसा. ये सेकेंडरी कॉइल है. इधर गैल्वेनोमीटर है एंड इधर हमने बैटरी करके स्विच बंद कर दिया. ठीक है. दोनों का एरिया हम ए ही मान लेते हैं. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मान लेते हैं? दोनों का सेम मान लेते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इज ए. ठीक है. अब मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का. स्टेप 1 क्या है? पास करंट इन प्राइमरी. करंट अगर मैं प्राइमरी में पास करूंगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज μ0 n1, because number of turns in the primary n1 है ना, दूसरे वाले का n2 है. μ0 n1 l, दोनों का लेंथ सेम है. I1 चलेगा क्या? I1 पकड़ते हैं. बराबर है. This is B1. अरे सेम थिंग वी हैव डन इट बिफोर आल्सो मैन इन सेल्फ इंडक्टेंस. सो हम पढ़ गए. यू आर नॉट सिटिंग इन अ गार्डन. सीधा बैठो. ओके. B1 is μ0 n1 l by I1. μ0 n1 l by into I1. This is the magnetic field in the primary coil. ये सेटअप होगा. इसके कारण कैन आई से फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. दैट विल बी NAB. ये हमने किया है. बट N कौन सा? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के साथ में लिंक हो रहा है. A तो दोनों का सेम है. अच्छा, किसका फील्ड लिंक हो रहा है? B1 का. फ्लक्स इज NAB. बट N किसके साथ में लिंक हो रहा है? N2 के साथ. एरिया तो दोनों का सेम है. और B कौन सा फील्ड लिंक हो रहा है? B1 वाला ना. हेलो, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस थिंग? बोलो यार. तो ये क्या हो गया? ये अगर B इधर डाल देंगे तो ये हो जाएगा N2A. B1 की जगह लिखेंगे μ0 n1 l into I1. ये phi2 हो जाएगा μ0 n1 n2 area by L into I. You know phi is equal to mi. म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया बिटवीन टू कॉइल्स? μ0 n1 n2 area by L. This is how you do it. This is an important formula. Getting it? पहले पास करंट किया, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ, उसके कारण फ्लक्स लिंक हुआ सेकेंडरी के साथ. And this is how you derive it. तो यही तो derive करने बोला है. Determine the mutual inductance of the two coils. μ0 n1 n2 area by L. Area by L. और अगर जब भी यहाँ पे तो दोनों का एरिया सेम है. अगर दोनों में से एक छोटा एरिया होता तो दिस विल बी द स्मॉलर एरिया. यहाँ पर तो दोनों का एरिया सेम है, बट जनरली अगर होता तो इट विल बी द स्मॉलर एरिया. गेटिंग इट? ये याद रख सकते हैं. And you all will be getting the whole concept of this thing. After this, okay, now I'm starting with the concept of transformers. सब लोग इधर मेरी बात सुनो, and then we'll do some sums. Transformer के sums एकदम easy है, ध्यान दो.
Okay. Transformers is, as the name indicates, it will transform. क्या ट्रांसफॉर्म करेगा? वोल्टेज एंड क्या? करेक्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. क्या करता है वो? किसी को पता है क्या? हेलो. Converts low voltage to high voltage. हाँ, it will convert, it will increase the voltage and decrease the current. बिकॉज वोल्टेज के साथ में करंट भी चेंज होगा. आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगा, बट उसके साथ में करंट भी घटेगा. और स्टेप डाउन क्या करेगा? कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट. गेटिंग इट? वोल्टेज को कम करेगा, करंट को बढ़ाएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और ट्रांसफार्मर होता क्या है? मेरी बात सुनो. ट्रांसफार्मर कैसे होता है? ट्रांसफार्मर में क्या करना है? एक मेटल शीट लेते हैं. सुनो, इधर मेरी बात सुनो. ये मेटल का टुकड़ा है, इसको बीच में से काट लेते हैं. Are you there? और उसको स्लाइसेस करते हैं. स्लाइस करते हैं मतलब उसको शीट्स में बदल देते हैं. बराबर है क्या? पतली पतली शीट्स में इसको मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी पढ़ा है ना तुम लोगों ने? हेलो. ये ऐसे शीट्स में मैंने उसको काट दिया ताकि एडी करंट लॉस मिनिमम हो जाए. याद है ना एडी करंट आता है इसमें? अरे भाई, हेलो. तो एडी करंट लॉस मिनिमम हो जाए, हीट मिनिमम हो जाए. अब क्या करने का? अब यहाँ पे ना दो कॉइल लपेट लेने का. वन इज विच कॉइल? प्राइमरी. आर यू देयर? बोलो. ये ऐसे लपेट लेते हैं, इधर से पास करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. तो यहाँ पर क्या होता है? कौन सा कॉइल होता है? बोलो. सेकेंडरी कॉइल. सही है क्या? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न में फर्क होगा. दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स विल बी डिफरेंट. सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो ये इसको कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर. नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम रहेगा सेकेंडरी में तो ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इधर मैं एक गैल्वेनोमीटर बना देता हूँ. चलेगा क्या? अब यहाँ पे कैन आई से दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी. अब देखो हुआ क्या एक्चुअली. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाउ मेनी कॉइल्स आर देयर बेटा? टू कॉइल्स. सो कैन आई से प्रिंसिपल किस पे काम करेगा? सेल्फ इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन? Mutual. म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यहाँ पे अगर करंट चेंज होगा, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट चेंज होने वाला है. करंट चेंज होगा तो यहाँ पे फील्ड चेंज होगा. यहाँ पे जो फील्ड सेटअप होगा ना इस सोलेनॉइड के अंदर, बराबर है क्या? फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? दिस फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी. देखो सही है क्या? हेलो. भाई सही तो है. पीछे तो किया था हम लोगों ने N1 N2 एरिया बाय एल म्यूचुअल इंडक्शन. तो करंट चेंज होगा, करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा. एंड दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विद व्हाट? लिंक्ड विद व्हाट? व्हिच कॉइल? Secondary coil. Whenever there is change in flux, what is induced in the secondary? Sorry, what is induced? EMF is induced in which coil? Secondary coil. Getting it or not? बोलो. इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन बताएगा, बताएगा कि नहीं? बिकॉज करंट आएगा, ईएमएफ विल गिव राइज टू करंट.
फिर से देखो करंट बढ़ा प्राइमरी में तो फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, दैट फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल and whenever there is change in flux, what is induced beta? EMF is induced and that phenomena is called as which induction? क्या बोलते हैं इसको? Mutual induction. तो transformer is based on the principle of mutual induction. मेरी बात सुनो सब लोग इधर मेरी बात सुनो। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी यार वीडियो ऑन करो, सब लोग इधर मेरी बात सुनो। ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी का एक कॉइल ये दिख रहा है, ये एक कॉइल की बात सही है क्या? इसके साथ में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो ये हो रहा है। अच्छा ये साइड पे कौन सा कॉइल है बेटा? सेकेंडरी कॉइल, ये दिख रहा है सेकेंडरी यहाँ पे। इसके साथ में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी, कैन आई से फ्लक्स लिंक पर टर्न इज द सेम? फ्लक्स लिंक पर टर्न इज द सेम। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहेगा उधर ज्यादा फ्लक्स होगा। अरे भाई ये देखो, ये इधर कितने टर्न्स है? 1 2 3 4 5, तो इधर 5 कॉइल रहेंगे ना ऐसे, सही है? तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 5 into 5, 5 टर्न है ना। बट यहाँ पर आप नंबर ऑफ टर्न दे सकते हो बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत ज्यादा। तो जिधर ज्यादा फ्लक्स होगा, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उधर ज्यादा फ्लक्स होगा। गेटिंग इट और नॉट? तो वेयर मोर फ्लक्स इज बीइंग लिंक्ड, कोई बता सकता है यहाँ पर इस सिनेरियो में प्राइमरी के सेकेंडरी? अरे बोलो यार। सेकेंडरी। तो कैन आई से वेयर मोर फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स लिंक, कैन आई से फ्लक्स लिंक पर टर्न इज द सेम? लिंक पर टर्न is same. Okay, where there is more number of turns, there is more flux, और जितना ज्यादा फ्लक्स, तो फ्लक्स चेंज होने पे क्या प्रोड्यूस होता है? फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई? EMF। तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा ज्यादा फ्लक्स चेंज किधर होगा? सेकेंडरी में। तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस किधर होगा? सेकेंडरी में। तो कैन आई से ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी इज लेस एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी इज मोर। तो ये टाइप के ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप अप। अच्छा वैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूं मैं सेकेंडरी में तो क्या बोलेंगे उसको? स्टेप डाउन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स लिंक पर टर्न सेम है, इधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उधर ज्यादा फ्लक्स होगा, ज्यादा फ्लक्स होगा तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, ज्यादा ईएमएफ आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं वेदर इट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो खाली ये स्टेटमेंट खाली याद रखना, फ्लक्स लिंक पर टर्न सेम है। जिधर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है उधर ज्यादा फ्लक्स होता है, ज्यादा फ्लक्स होगा तो ज्यादा ईएमएफ आएगा, ज्यादा ईएमएफ आएगा तो इट विल बेस्ड ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन। समझा क्या सब लोगों को? अभी इसके फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सब लोग इधर मेरी बात सुनिए। ये फॉर्मूला सुना है कि E is equal to minus d5/dt, फ्लक्स इज NAB, सुना है क्या ये? अरे भाई बोलो। अभी इधर मेन फर्क जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स का है। इधर मेन फर्क क्या दोनों में? नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क है ना। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बाहर निकाल देता हूँ डेरिवेटिव के, तो n d5/dt लिख सकता हूँ, चलेगा क्या? बराबर है? ओके मतलब ए बी को अंदर फाइव बना दिया मैंने, एन बाहर ले लिया, चलेगा क्या? व्हाट विल बी फाइव इक्वल टू नाउ ए बी? अरे भाई बोलो यस और नो। अच्छा प्राइमरी के लिए अगर लिखना है मुझे तो कैन आई राइट ई पी विल बिकम माइनस एन पी d5/dt। सेकेंडरी के अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? माइनस NS d5/dt। Can you tell me what does NP and NS stand for? NP and NS जल्दी बोलो, हाँ अभी टाइम नहीं है। NP and NS stand for what? Number of turns in primary. Number of turns in secondary. What does EP and ES stand for? EMF induced on the
primary and EMF induced on the secondary. What does d phi by dt stand for? Flux per turn. Change, नहीं, change in flux. Very good, very good. यही word चाहिए था, per turn. Rate of change of flux, rate of change in flux, क्या unit, क्या per turn, क्योंकि number of turn तो बाहर निकाल दिया ना मैंने. हेलो, can I say इसका d phi by dt और इसका d phi by dt सेम है, because flux per turn change दोनों का सेम है. अरे भाई बोलो, तो can I divide both of them? उल्टा, तो can I say ES upon EP क्या हो जाएगा? अरे जल्दी जल्दी बोलो यार. NS upon NP, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अच्छा, और एक फॉर्मूला लिखा जाता है ट्रांसफार्मर में, दैट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसको मालूम है? स्कूल से पढ़े हैं. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बराबर है क्या? बट एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज काउंटेड टू बी 1 फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर. एफिशिएंसी कितना है? 1. एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब क्या? आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर. सही है, ये हमने माना है यार दिमाग में. प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होता है, आपको पता है लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, नाम तो सुना रहेगा सब लोगों ने. बट आइडियली हमने मान लिया कि आउटपुट एंड इनपुट सेम है. अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या? वी आई वी आई वी आई वी आई वी आई. कैन आई से आउटपुट किधर से लिया जाता है? सेकेंडरी से. कैन आई से वी एस आई एस. एंड इनपुट कहाँ दिया जाता है? प्राइमरी में, वीपीआईपी. बोलो सही है क्या? बोलो सही है? या पावर की जगह वीपीआईपी की जगह ईपीआईपी EI लिख सकता हूं मैं, चलेगा क्या? हेलो बोलो यार. ऑलरेडी ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन. सही है क्या? ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कोई बता सकता है E और I का रिलेशन क्या है? इनवर्स है. देखो, मतलब E बढ़ा तो I कम हुआ. पहले लिखाया था मैंने, स्टेप अप में क्या होता है? E बढ़ता है तो I घटता है, और E कम होता है तो I बढ़ता है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है. सही है क्या? बिकॉज ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होता है. गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये वाला फॉर्मूला था. अब ये फॉर्मूला जो हमने बना लिया वो कौन सा था? मैं देख लेता हूँ. ES अपॉन EP is NS upon NP. Can I write this as IP upon IS? अरे भाई अभी दिखाया, दोनों को ज्वाइन कर दो. सही है क्या? हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. अरे पीछे ये दोनों को ज्वाइन किया ना यार, ये स्कोर इसको ज्वाइन कर दिया. देखो तो, ES upon EP, NS upon NP, IP upon IS. ES upon EP, NS upon NP, IP upon IS. Got it? Okay, listen to me. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं. अच्छा, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है ना ट्रांसफार्मर में याद रखना, तेरा 2 फॉर्मूलाज. मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए. सबसे पहला फॉर्मूला इज NV. ये याद रखना, NV. NV क्या होता है? ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, VS अपॉन VP, IP अपॉन IS. इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो.
इसको बोलते हैं के, के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये पहला फॉर्मूला है जो ट्रांसफॉर्मर में बहुत काम लगेगा। सेकंड फॉर्मूला कौन सा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर है, परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100, बराबर है क्या? हेलो, अरे भाई अभी पूरा पूरा प्रूव कर दिया, यस और नो, क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? अभी आपने बताया था, जल्दी बता दो। कौन बड़ा रहता है? ईएस बड़ा रहता है Secondary. ना, ईपी से। ईएमएफ बड़ा रहेगा सेकेंडरी में। तो क्या मैं कह सकता हूँ ईएस बड़ा है तो एनएस बड़ा है? अरे बोलो ना यार। Yes, sir. और आईपी आईएस छोटा है ना, बोलो। अच्छा, स्टेप डाउन में क्या होने वाला है? जल्दी 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 यार, टाइम नहीं है अभी, जल्दी जल्दी बोलो चलो। So EP is greater ईएस, than ES. ईपी इज ग्रेटर देन ईएस, और आगे बोलो। And NP is greater than NS. Then एन IP is आई, less than IS. परफेक्ट परफेक्ट हो चुका। तो ये था स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ये तो एकदम आसान है। अच्छा, रिवीजन हुआ था आप लोग का सैटरडे को? ए क्या, वेडनेसडे को? Yes, sir. समझ में आया ना सब? हाँ, Yeah, yes. ओके ठीक है, चलो। नाउ ऐसे ही ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, देन आई विल बी टेकिंग द रिवीजन। अभी हम लोग कुछ सम्स कर लेते हैं। चलो 1 1 1, 2 4 सम है, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं इसको एंड चैप्टर विल गेट। फॉर्मूला आपको आता है एनवी, एनवी ई एन वी आई, बराबर है क्या? ई एन वी आई। प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज नंबर ऑफ टर्न्स। कितना है नंबर ऑफ टर्न्स? प्राइमरी कितना है? 100 है। सेकेंडरी कॉइल का कितना है? 300 है। ये द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी। ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी कितना है? 150 वोल्ट। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द सेकेंडरी? बोलो कौन सा फॉर्मूला? ए दीप शाह, जल्दी जल्दी बोलो यार, कौन सा फॉर्मूला? एकदम आसान है। ईएस EP by अपॉन ईपी, ES is equal to ईएस अपॉन NS by ईपी NP. हो गया आंसर। ईएस बाई यूई, ये कोई सम है क्या यार? ईपी 150, ये एनएस कितना है? 300 बाई 100। गेटिंग इट? ये कितना हो गया? 450 वोल्ट। बोलो, गेटिंग इट और नॉट? अरे हाँ ना बोलो यार, जल्दी जल्दी Yeah. Yes, फटाफट, sir. कम। चलो 115, अभी ये सब इस पे ही बेस्ड है पूरा। 115 कर लेता है, लास्ट वाला क्वेश्चन, एंड आपको समझ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 500। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कितना है? 2500 है। द पावर इनपुट इज, पावर इनपुट 80 into 10 raised to minus 3 watt at 240 वोल्ट। तो इनपुट वोल्टेज कितना है? इनपुट मतलब प्राइमरी का वोल्टेज कितना है? 250। प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। इनपुट मतलब प्राइमरी। क्या चाहिए आपको? आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब वीएस चाहिए। और क्या चाहिए? करंट इन द प्राइमरी, आईपी चाहिए। चलो बोलो कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? अरे यार बोलो जल्दी जल्दी। कैन आई से एनएस अपॉन एनपी इज वीएस अपॉन वीपी? एनवी वाला, ई एन वी आई वाला। अरे भाई बोलो, अरे हाँ ना बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। Yes, ओके, sir. एनएस कितना है? ये कितना हो गया? 2500। ये एनपी कितना है? 500। वीएस पता नहीं है, वीपी 240 है। वीएस मिल जाएगा यहाँ से, क्लियर है क्या? वोल्ट मिल गया वीएस। अब ये मिल गया मेरे को। अब आईपी मांगता है। आईपी कैसे निकालेंगे? व्हाट इज इनपुट पावर का फॉर्मूला? VI. वीपी आईपी। प्राइमरी की बात होती है ना इनपुट में। वीपी आईपी, इनपुट पावर कितना है? 80 into 10⁻³ वीपी कितना है? वीपी वीपी 240 है। आईपी आईपी मिल जाएगा एम्पियर में। बोलो, अरे यार बोलो ना, सही है क्या? इतना इजी है पोर्शन तो, आधा तो कट हो गया। हार्ड वाला तो पोर्शन कट ही हो गया। ये सब इजी इजी वाला है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। इसका टेस्ट देते रहो, आराम से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? हीथ्रू बरेल, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. लीशा, डिड यू गेट इट? Yes, sir. ठीक है, बस खत्म। ठीक है, तो चैप्टर खत्म। अब मैंने सुबह में ऑल्टरनेटिंग करंट के 2 वीडियोस डाला है, 8 बजे आ गया रहेगा। हेलो, आया ना? हाँ, तो आप लोग वो वीडियो देख लेना नेक्स्ट टाइम तक। और ऑल्टरनेटिंग करंट 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे हम लोग, फिर बाद में रिवीजन चालू करेंगे। गेटिंग इट ऑन?
हेलो, तो एवरी वेडनेसडे तो रहेगा ही, उसके साथ में एक दिन मैं भी आ जाया करूंगा, ठीक है ना, रिवीजन के लिए। तो वो रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, टाइम अच्छा खासा है, फटाफट प्रैक्टिस करो और आराम से मिल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड ईएमआई पूरा पूरा हो चुका है, ईएमआई कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज माय लास्ट चैप्टर। मुस्तफा सर कौन सा चैप्टर चला रहे हैं? फ्लूइड्स चल रहा है ना? Fluids. Yes, sir, fluids. फ्लूइड्स, हाँ ठीक है, चलो। तो बस एक दो चैप्टर और बाकी है, फिर बाद में हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे उसका, ठीक है। So चलो, tomorrow do we Yes. have the test of dual nature? या यू हैव द टेस्ट ऑफ डुअलिटी, यस। Please could you shift the day of the test because the sums are too big, so we need to practice. सम्स आर टू बिग भाई, 2 हफ्ते से तो पोस्टपोन हो गया, फ्राइडे को टेस्ट था। So we अभी had our Wednesday- college exams. Yes, sir. अरे यार तुम लोग ऐसे करेंगे तो पूरा टाइम टेबल खराब हो जाएगा। जो सैटरडे कर सकते हैं, सैटरडे आके देंगे तुम लोग एग्जाम सैटरडे। So we have a test of yours on Friday also. फ्राइडे नहीं है, फ्राइडे का टेस्ट कैंसिल्ड है, या तो फ्राइडे को कर लो। Yeah, we'll give it on Friday. देखो फ्राइडे का टेस्ट क्यों कैंसिल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल का पूरा चैप्टर ही कैंसिल्ड है क्वेश्चन में। अरे भाई, गेटिंग इट और नॉट? मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाया रहेगा ना मुस्तफा सर ने, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो सब उड़ गया, Yes, sir. सब खत्म हो गया। उसमें से सिर्फ 2 छोटे सेक्शन है, उसका क्या टेस्ट लूं यार? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म का टेस्ट है, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना गोल 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 गोल, मैग्नेटिक मोमेंट, वो एक छोटा सी सेक्शन है, और दूसरा और एक छोटा सेक्शन है, उसका क्या टेस्ट लूं यार? 2 क्वेश्चन का तो मैंने टेस्ट उड़ा दिया वो। तो फ्राइडे का टेस्ट आप लोग, कल का टेस्ट फ्राइडे को दे देना, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, ठीक है, sir. चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय। Bye. Thank you, sir. थैंक यू।